And for today's session, I'll not take much time for this. I would like to invite and honor and welcome our esteemed guest speaker, Mr. R.J. Rahul, who has been a dynamic freelancer, anchor, presenter, and radio jockey for the past 12 years. Okay, you can see in the picture the celebrity presenter. I'm going to invite him, and he has hosted a number of programs for various organizations like UNESCO, UNICEF, Akashvani, Doordarshan, Ministry of Culture, and the rest is so long. And dear students, you will soon experience his vibrant energy, engaging presence, and his talent of captivating audience. So please put your hands together and welcome. Thank you. And I request Honorable Managing Director to please come and welcome him. I would like to invite our head boy, Devrat, to please come and put Tilak as the custom of the school. It is our tradition. Nice. So he's the head boy? Hi. Thank you. Thanks. Please welcome sir with a huge round of applause. Thank you. Thank you. Thanks. Ma'am, I request you to please present him a planter. Thank you as so a much. token of love from Team SRCPS. Thank you. Thank you so much, sir. Dear students, we have another guest of honor, Mr. Harish Deshmukh, the assignment head in GQ. I would like to invite him to please come to the stage, and I request Devrat, our head boy, to please welcome him with Tilak. Please present Deshmukh sir, a planter. या अभी रोक सकते हैं, ठीक है. लेट्स कीप इट हियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. अब ठीक है. यहाँ जिसने कहा सबसे लास्ट तक आवाज किसकी आई? आपकी. कौन है? छुपो नहीं, आगे आओ, यही टाइम है. अभी एज राइटली सेड बाय मैम कि आप लोगों को रिग्रेट नहीं होने वाला है, और जो नहीं आया है उसे आप जरूर बताएंगे. उसके पीछे कारण है. सो टाइम विल रिवील इट. एंड आई मस्ट से थैंक यू SR कैपिटल फ्रॉम एवरीवन, जिसको भी मैंने ये कहा कि मेरा ये आइडिया है या हमको ऐसा करना चाहिए, उनका कोई भी सवाल ही नहीं था इसके बाद, इंक्लूडिंग मैम. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जैसा मैम ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं. सो लेट्स बिगिन दिस. सो द मेन क्वेश्चन इज कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है. ठीक है. सो बहुत रैंडम सवाल है. आप लोगों ने सुना, मैम ने एक आपको डेफिनेशन बताया. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन क्या है? एनी वन ऑफ यू, आप कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है बताइए? Improving skills. Only communication. I am talking about only communication, not communication skills. My idea is to know you, right? कि communication skills के बारे में आप क्या सोचते हैं? Communication skills क्यों आपके लिए important है? Right? So communication skills के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? बताइए. Communication is a talk to anyone. And communication skills is a way to talk to anyone with an efficiency. Communication is a method to talk to anyone, just normally. Okay. But communication skills is an efficient way to talk to anyone. Great. Very nice, Sana. कोई और बताएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? हाँ बोलिए. बहुत अच्छा है जवाब ये. इसको और अच्छे से एलॉबरेट किया जा सकता है. गुड. आपका नाम? वंश. गुड. और कोई? हाँ बोलिए. Communication is a way in which a person accurately conveys message to other person.
इसमें एक वर्ड यूज हुआ, आपका शुभ नाम? तन्मय। तन्मय ने बहुत तन्मयता से जवाब दिया और एक वर्ड यूज किया, एक्यूरेट। एक्यूरेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शब्द है, एक वर्ड है इस पूरी आपकी डेफिनेशन में। एक्यूरेट का मतलब क्या है? हम अक्सर फोन पर बात करते हैं, किसी को हमारी बात समझ में नहीं आई, झगड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए मोड क्या है? ऑडियो। आप उसको लग रहा है कि आप तेज बोल रहे हैं, हो सकता है आपके बोलने का टोन ही तेज हो, लेकिन उसके कानों को क्या लग रहा है कि आप लड़ाई करना चाहते हैं, तो आपकी बात खराब हो गई। एक्यूरेट होना इसलिए जरूरी है, टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद को पहले बेहतर तरीके से जाने ताकि आप अपनी बात अच्छे तरीके से कह पाए। सबसे अच्छा आई थिंक आप सबका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा तन्मय का बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। चलो, सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स की हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, एटसेट्रा। लेट्स स्विच टू द प्रेजेंटेशन मोड प्लीज। सो हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करेंगे, ठीक है? किसी के मन में कोई सवाल आए तो आपको बेहिचक पूछना है, ठीक है? वहीं रोकना है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि बात करना, हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, ये कम्युनिकेशन है। मैं आपकी जब क्लास में गया था तब मैंने कहा था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी टीचर पढ़ते हैं। आपकी क्लास टीचर में बैठी हुई हैं, आपसे मेरा परिचय है। सो अगर वो आपको रीड कर रही हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड है। कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये उन्हें पता है। कितना समझ में आया, ये भी उन्हें पता है। तो ये सब कैसे कन्वे होता है? ये बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है। सो लेट्स प्रोसीड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ वास्ट नेटवर्क, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है? अब आपको कम्युनिकेट करना है, आपकी भाषा कम्युनिकेशन का पार्ट है, आपका इंटेलिजेंस, आपके शब्दों का चयन, बैरियर्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्या नहीं बोलना है, क्या कहने से बचना है, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको कन्वे करनी है। एज आई इनवाइटेड माई फ्रेंड हरीश विद मी, ही इज इन जी न्यूज। तो न्यूज चैनल का नाम क्या है, काम क्या है? न्यूज कन्वे करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है क्या? आप लोग अपने अपने घरों में जब आपकी मम्मी जो है आपके लिए खाना बनाती हैं तो सबसे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बैठे बेटा, बैठ के बताइए प्लीज। और अपनी मम्मी के हाथों का खाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारी मम्मी उस खाने को इतने प्यार से बनाती है, इतने प्यार से बनाती है। गुड। और इस प्यार में एक बहुत समय का जो एक्सपीरियंस मम्मी का हर दिन हर टाइम ऐड ऑन हो रहा है, वो एक आर्ट में तब्दील हो जाता है, राइट? इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है? इट्स एन आर्ट। आप जब भी आर्ट एंड क्राफ्ट करते होंगे, अभी आप क्लास 10th में आ गए हैं, बट आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट करते होंगे, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का जो आउटपुट है वो आपको अट्रैक्ट करता होगा, क्योंकि जब आप लोग छोटे थे तब आप लोग भी ये काम आप किया करते थे, राइट? सो एवरीथिंग इज एन आर्ट इन आवर लाइफ। अगर हम आर्ट की तरीके से कोई भी काम को करेंगे तो वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस और इट टेक्स एक्सपर्टीज, और ये सब एक दिन में नहीं आता है, ठीक है? तो आज चूंकि आप अभी क्लास 10th में हैं, आपको आगे फर्दर आगे जाना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है फर्दर स्टडीज में? ओके, 1 2 3 4 5, ओनली 5 बॉयज, विल बी 7 will be preparing for engineering. Okay, medical almost same, 8. Okay, fashion designer 8, very good, good. और कोई एविएशन में जाना चाहता है? एविएशन इंडस्ट्री में कोई एविएशन वाला है? नहीं है। एग्रीकल्चर में भी कोई नहीं है। मीडिया 1 2, मीडिया वाले बहुत कम है यार, क्या बात है। अच्छा, फिर अब मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा और आपकी चॉइस के जो सेगमेंट्स है, एरियाज उन्हें नहीं डिनोट कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी हाथ नहीं उठाए, तो जो मेजॉरिटी है वो क्या है? आप बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप? बोलिए, स्पीक लाउडर। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इंटरेक्टिव कैसे होगा?
बोलिए। जज, वाह, फैसिनेटिंग। जज एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत गहन पोजीशन है। जजमेंट करने के लिए बहुत बृहद सोच होनी चाहिए। हाँ बोलिए। सीए, ग्रेट। मालूम है बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं और जो धनोपार्जन करते हैं वो सीए होते हैं, तो ये धनोपार्जन करेंगे। आप सीए, अच्छा दोनों सीए साथ में बैठे हैं। आप जर्नलिज्म करेंगे। मैंने मीडिया पूछा था, इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया, गुड। हाँ, आप सन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारी नौकरी यही खाएगा, कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, 4 से नौकरी कम हो जाएगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। सी, इनोवेशन करना ही पड़ेगा। आपने कहा आपको जज बनना है, कम्युनिकेट करना जज के लिए सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि सामने बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, सच है, झूठ है, पता नहीं क्या क्या है, बट आपको जजमेंट देना है। यानी आप जो लिखोगे उस पर न जाने क्या क्या टिका होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस किसके लिए हुई? जज के लिए हुई। आपके सामने वकील आएगा, पेशकार आएगा, वादी आएगा, वादिया आएगा। अभी अब जब पढ़ोगे आगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। सीए को कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट से, सर कितने पैसे कमाए हैं आपने, टैक्स भरना है। वो कह रहा है सर टैक्स नहीं भरना है। अब सीए को ईमानदारी भी दिखानी है, सर टैक्स भरना ही पड़ेगा, टैक्स भरना अच्छी बात है, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए लैंग्वेज का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जब ही आप कम्युनिकेट कर पाओगे देन ओनली यू कैन डेवलप समथिंग न्यू, राइट। अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो रोज चल रहा है, लेकिन लोग जानते कितने लोगों को है। सबीर भाटिया का नाम सुना है किसी ने? अब आप लोग बहुत छोटे हैं, हमारे टाइम हम आपके बराबर थे तो हमारे सामने वो आया था, शायद प्रतीक को मालूम होगा। सबसे पहला जो मेल सर्वर है वो सबीर भाटिया ने ही बनाया था, ठीक है। उसे कोई नहीं जानता, बट उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट केम इनटू पिक्चर, फिर सबको जो है माइक्रोसॉफ्ट ही याद है, ठीक है। तो बट एनीवेज ये सब चीजें चलती रहती हैं। सो माय आइडिया इज टू टेल यू दैट कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, राइट। अब आर्ट को होन करने में टाइम लगता है। हम कहीं जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि होन योर स्किल्स। आपको हर दिन पढ़ते रहना है। आपको जो चैप्टर 1 पढ़ाया गया है किसी भी सब्जेक्ट का, आपके जब मार्च में एग्जाम होंगे तो वो चैप्टर 1 का पहला दिन आपको रिवीजन शुरू हो जाता है जनवरी से, राइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे आपके टीचर, तो हो सकता है कि चैप्टर 1 में सो जाए। आपको चैप्टर 12 तो याद है जो लास्ट है, बट चैप्टर 1 क्या हो गया? धुंधला हो गया। सो होनिंग योर स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी चलेगी। चलो लेट्स प्रोसीड। अब आज हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसा होना चाहिए? आप सब जो है एक फिनोमिनल कम्युनिकेटर बने, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हम चाहते हैं। बट लेट यू डिसाइड कि आपको कितना बेहतर बनना है। आप जितना खुद पर काम करेंगे, आप जितनी खुद के लिए मेहनत करेंगे, उतने अच्छे कम्युनिकेटर आप बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द एजेंडा ऑफ द सेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। गुड लिसनर, सुनने की जो उसकी क्षमता है वो बिल्कुल ही जबरदस्त होनी चाहिए। आप में से कोई ऐसा है जो रेलवे में जाना चाहता हो? रेलवेज में जाना नहीं चाहता कोई? आपको मालूम है कि रेलवेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कितने बच्चे हैं जो रेलवेज में ट्रैवल करते हैं? ऑलमोस्ट सभी करते हैं। आई थिंक आई कैन से 90-95% राइट ट्रेवल्स इन ट्रेन। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसके पास बहुत शोर होता है इंजन में, पता है। जो स्टेशन से ट्रेन गुजर रही होती है छोटे, जहां पर सिग्नल से मिलता है जाना है या नहीं जाना, या थ्रू कहते हैं ग्रीन। तो जो स्टेशन मास्टर है उसके पास बहुत शोर होता है। उनके पास जो फोन होते हैं उसको सुनने के लिए एबिलिटी ऑफ लिसनिंग चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं सुनेंगे तो ब्लंडर हो सकता है उनसे, राइट। गुड लिसनर होना कितना जरूरी है किसी भी जॉब में। मैं रेलवेज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा शार्प है, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, राइट। अगर ट्रेन के ड्राइवर से कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी बात मिस हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट की संभावना है, राइट। और हम जो अक्सर पढ़ते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन लैप हुआ, या कोई सिग्नल फेल हो गया, टेक्निकल ग्लिच हो गया, कुछ भी हो गया। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए ताकि उसको लोग जो है आसानी से उसके साथ जेल हो सके। आपके अच्छे दोस्त किसके सबसे ज्यादा? 5 दोस्त किसके हैं स्कूल में? 5।
10, ओके हेड डाउन, सॉरी, ओके डाउन। 10 फ्रेंड्स किसके हैं? ओके ठीक है। 15, ठीक है। अब इसका रीजन ये है कि आप ज्यादा लोगों से बात करते हैं, तभी तो आप दोस्त बन पा रहे हैं ना। तो ये सब क्वालिटीज एक अच्छे कम्युनिकेटर में होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, फ्रेंडली आप होंगे तभी आपका दोस्त आपके साथ अपनी बातें शेयर करेगा या आप अपनी बातें उसके साथ शेयर कर पाएंगे, राइट। सो द नेक्स्ट क्वालिटी इज ऑब्जर्वेंट होना चाहिए उसको। ऑब्जर्वेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सी चीजें आपको कहकर नहीं सिखाई जा सकती। टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आई एम श्योर टीचर्स को अक्सर ये किसी भी वर्कशॉप में आप जाते हैं आपको ये कहा जाता है कि बी एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स, बी एग्जाम्पल फॉर द क्लास। मैं जिन टीचर से पढ़कर आज आया हूँ और मैं इतना लकी हूँ कि जब उनको नेशनल अवार्ड मिलता है कोई ICT या इस टाइप का, तो मैं उनका नाम पुकारता हूँ। मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता हूँ जिसमें उनको वो अवार्ड कन्फर किया जा रहा होता है। सो दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी, आई थिंक, कि मैंने शायद उनकी सफलता को सार्थक करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। सो द थिंग इज ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। आपको चीजों को देखना पड़ेगा, कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हो कैसे रहा है। जो फ्लो ऑफ लाइफ है, जो फ्लो ऑफ इवेंट है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो फ्लो ऑफ एजुकेशन है, जो फ्लो ऑफ स्टडी है, वो कैसी है, राइट। क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पोलाइट होना क्यों जरूरी है? झगड़ा किसका होता है सबसे ज्यादा क्लास में? हाँ, आप बहुत हंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? सार्थक। वाह, नाम ही सार्थक है आपका, गुड। हाँ भाई, झगड़े वाले में हाथ नहीं उठाया किसी ने? थोड़ा बहुत भी नहीं होता क्या किसी का? आपका होता है, अच्छा गुड। आपका भी जज साहिबा मतलब जज साहिबा लड़ाई कर रही है, बताइए। जज लड़ाई करेगा तो बाकी जनता का क्या होगा भाई? और किसी की नहीं होती है, बॉयज में किसी की नहीं होती है। वाह, बड़ी शरीफ क्लास है। यानी मैं ये मान के चलता हूं कि मैक्सिमम बच्चे पोलाइट हैं, ठीक है। अब पोलाइट क्यों होना चाहिए इस पर हम बात करेंगे इन डिटेल, ठीक है। इंक्विजिटिव होना चाहिए। इंक्विजिटिव क्यों होना चाहिए? सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है क्लास में? आप पूछती होंगी, मुझे लग रहा है पूछती होंगी, गुड। कोई और इनके अलावा? तन्मय पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हार्दिक पांड्या, शर्मा, गुड, राहुल शर्मा। हाँ, हम पूछते हैं आपका नाम? अच्छा, वंश जैन, जय जिनेन्द्र। तो कहने का मतलब ये, जो जितने ज्यादा सवाल पूछेगा उसके पास उतनी ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी उस चैप्टर की जिसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे होंगे, ठीक है। इसलिए इंक्विजिटिव होना चाहिए। रिलायबल। अब जैसे मैंने पूछा था 15 फ्रेंड्स किसके हैं, यानी कि जिसके 15 फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। वो रिलायबल है तभी उसके दोस्त हैं। तो रिलायबिलिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। प्रोएक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अगर चैप्टर खत्म हुआ है, आज ही अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वेल एंड गुड। ये नहीं कि ठीक है कल पूछ लेंगे, कल दूसरा चैप्टर आ गया, परसों पूछ लेंगे, फिर वो दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, फिर अरे परसों का था रहने दो। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। सो बी अ प्रोएक्टिव। और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी आपको समझना होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। मैम बैठी हैं, शी इज लिसनिंग बट वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट। और भी टीचर्स बैठे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग। Everyone in this hall is communicating. Pratik is communicating through his camera, right? हर चीज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है लाइफ में। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कम्युनिकेशन का पार्ट ना हो, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर सर्कल ऑफ अ कम्युनिकेटर। इसमें जो कलर है वो एक रेशियो में है। अगर केवल ये एक पार्ट ज्यादा हो जाए और कुछ कम हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा आपकी लाइफ में। पूछिए क्यों? अगर आपको केवल करेले की सब्जी मिले एक हफ्ते तक, आप खाएंगे? एक हफ्ते तक भिंडी मिले तो खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। आपको केवल एक दिन हफ्ते में करेला बहुत मुश्किल से चाहिए, 2 टाइम हफ्ते में मुश्किल से भिंडी चाहिए, आपको आलू भी चाहिए, आपको पनीर भी चाहिए, राइट। क्यों चाहिए?
क्योंकि वो आपकी टंग का एक बैलेंस है। आप रोज भिंडी नहीं खा सकते, राइट? आप रोज करेला नहीं खा सकते। तो इससे हमें ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस है, एक तरह से संतुलन, संतुलन वर्ड सुना है सबने? एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है महाभारत का, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन संतुलन का नाम है। सुना है सबने? बहुत ही फेमस कोट है वो डायलॉग में नहीं रह गया है। उसमें जितनी भी चीजें कही गई हैं, उसका जो भी राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको, नाटक को केवल देखना नहीं है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वी शुड लर्न फ्रॉम इट, राइट? सो इसीलिए कम्युनिकेटर बनना है तो आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। आपके पास एक अच्छी चॉइस क्या है? अभी आपके पास मैक्सिमम एक ही काम है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी? स्टडी, वेरी गुड। टुवर्ड्स योर स्कूल, टुवर्ड्स योर टीचर, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। केवल एक ही काम है आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एट लास्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पढ़ाई करना। अब उसमें बैलेंस बनाना कंपैरेटिवली आसान है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, फिर आपका जो बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस आएगा, लाइफ बैलेंसिंग आएगी, वो थोड़ा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट होता है, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड। लिसनिंग जब आप करेंगे तो लर्निंग भी होगी, राइट? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा मैंने आपसे कहा, लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कनेक्टिंग विद एनीवन एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। मैं आज आप लोगों से मिला हूं, आपसे मैंने पूछा किसको क्या बनना है, तो मुझे एक आइडिया लगा कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट इस फील्ड में भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू कि इंटरेस्ट कहां पर है, किस एरिया में ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये मेरे लिए लर्निंग का एक टाइम है, राइट? आपके लिए, आपके टीचर से आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो इट विल बी अ लर्निंग, राइट? इसमें कोई भी हो सकता है, टीचर्स, बॉस, फैमिली मेंबर, इट्स अ कॉमन फैक्ट। सबके लिए अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, राइट? और लर्निंग टू बी अ बेटर लिसनर prepares you to understand the lives and needs of others। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, क्योंकि तब आप सामने वाले की बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। केवल अपनी बात कहना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, सामने वाले का ध्यान से सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने से ज्यादा समझना और बोलने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आपको याद होगा, एक बहुत कॉमन आजकल वीडियोस चलते रहते हैं। कितने लोग हैं जो रील्स यूज करते हैं इंस्टाग्राम पर? शराफत में कोई ऐसे भी हैं जो हाथ ना उठाते हो तो बताएं। ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं ना। पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो आया होगा, आपने देखा होगा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो कहते हैं कि मैं अटल जी से मिला था। देखा है किसी ने वो वाला कि मैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ? सुना है किसी ने? आपने सुना है? क्या कहते हैं रजत शर्मा सवाल उनसे याद है? अगर सीखना है तो ये सीखिए कि कहाँ नहीं बोलना है और कहाँ बोलने से बचना है। तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है? हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक बार एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर सर चीफ गेस्ट थे, तो मेरा टर्न आया, एक एड्रेस खत्म हुआ, उनका कॉल था, अगला एड्रेस चीफ गेस्ट का था, एजुकेशन मिनिस्टर का। मेरे अनाउंसमेंट करने के बाद भी वो सेक्रेटरी सर से बात कर रहे थे एंड ही जस्ट टुक हिज ग्लास, वो वाटर, पानी पीने लगे वो। अब वो मिनिस्टर है और पूरा एक पैसेज था आने के लिए, तो इट विल टेक अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां आपको हमेशा नफातुल्ला ही बोलना होगा। यू कैन नॉट गो एक्सीड एंड यू डोंट नीड टू बी, बट 40 सेकंड का पॉज बहुत होता है। मैं रेडियो से हूँ, रेडियो में आपको मालूम है अगर सांस भी लेते हैं ना तो सुनाई देता है। फील किया होगा आप लोगों ने, आई एम श्योर रेडियो बहुत अच्छे सुना होगा, इन बच्चों ने शायद कम सुना हो, आपने भी रेडियो का आनंद लिया होगा, आई एम श्योर। पॉज जाना बहुत ही खराब होता है कम्युनिकेशन की दृष्टि से। अब 40 सेकंड वो पानी पिएंगे, ग्लास रखेंगे, फिर वो उठेंगे, फिर वो जो उनका फेस है वॉक करते हुए स्टेज पर आएंगे। तो 30-40 सेकंड के लिए चीजों को मोल्ड करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। कि आप बोलेंगे क्या,
आप उस टाइम पर आपको 7-8 हज़ार लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, 1-आध हज़ार लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, राइट। तो वहां पर आपको ये तय करना होगा कि मुझे बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है, बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना है। तो आपने जो नहीं बोला वो भी कम्युनिकेट हुआ, क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोल देंगे तो क्या मैसेज आएगा, ही और शी इज नॉट अ गुड एंकर, आपके जॉब कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप संभाल कर ले गए तो आपको अगली बार फिर मौका दिया जाएगा, राइट। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। वो 30-40 सेकंड्स में मैंने यही बोला कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आज हमारे बीच फिर आज उपस्थित हैं। हमेशा की तरह उनका हमें जो है मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, और निसंदेह आज भी वो जिन बातों पर, जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे हालांकि याद नहीं है, मैं ये सोच कर बोल रहा हूँ शायद मैंने ऐसा बोला होगा। इट वॉज अ रैंडम कॉल। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप सोच पाए, आपका क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता है। मेरे पास करीब मैं 700-800 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ, और ओवरऑल तो शायद 1000 से ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये समझ में आ गया है कि शब्द चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आपस में बात करें, क्लास में टीचर नहीं है तो जो टोन होगा वो डिफरेंट होगा, जो शब्द यूज हो रहे होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। बट एज शी वॉक्स इन तो चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है ना, वही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट वॉज अ फाउंडेशन ऑफ NCERT, 63rd फाउंडेशन डे था। तो फिर मैंने कहा कि आज हम इस प्रांगण में हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और NCERT के माध्यम से हम तमाम बच्चों तक पहुंचते हैं जो भारत का भविष्य। इस तरीके से मैंने कुछ बोला, इतनी देर में वो आ गए थे। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, और फिर मैं वॉक डाउन फ्रॉम द स्टेज। सो ये सब चीजें ट्रिक्स होंगी जो सीखनी है, केवल इस फील्ड में नहीं जो मैं कर रहा हूँ। आपको CA बनना है, आपको डेवलपर बनना है, आपको जुडिशरी में जाना है, आपको मीडिया में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, ये आपके काम आएगा ही आएगा, राइट। अगर आप दूसरों के साथ एम्पैथी रखेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे के लिए है। हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, दोस्त कहना आसान है, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, राइट, बट इंपॉर्टेंट वही। आप अगर आज बीमार हुए, मैं जब हाई स्कूल में था मेरा राइट नी फ्रैक्चर हुआ था, सो मेरा पूरा प्लास्टर लगा हुआ था यहाँ तक, आई कैन नॉट मूव। और दिसंबर में आई थिंक हुआ था मेरा एक्सीडेंट, मार्च में एग्जाम थे फाइनल। सो मेरा एक दोस्त था, वो रोज स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मेरे घर आता था होमवर्क में। 2 महीने का प्लास्टर था मेरा, फुल पैर का यहाँ तक, मैं इवन चल भी नहीं सकता था। अगर इतना होता तो भी मैं मूव करता। तो ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसी के भी साथ हो सकता है। आपको आज बुखार हो गया, आज बारिश हो रही है, आप नहीं आ पाए, अब ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, वो कुछ भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सबसे आसान तरीका जानने का यही है, क्योंकि आप जिस दौर में हैं, आप अभी आज जिस क्लास में हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं चीजों की है कि आपका मेन गोल क्या है और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई करना है, वो ना छूटे, राइट। तो वो हमको ध्यान रखना है। Try to be understanding when anyone is having trouble and express your sympathy. Letting others know you care about their well-being can also make you more approachable. अब इसमें एक वर्ड है more approachable. Approachable क्यों? क्योंकि अगर आप empathetic नहीं होंगे तो कोई आपको अप्रोच नहीं करेगा। अगर आपका दोस्त अच्छा नहीं होगा तो आप क्या कहोगे, यार इससे ये जो नजदीक में रहता है उसकी अंदर एम्पैथी नहीं है, तो आप उससे होमवर्क मांगने की बजाय जो दूर रहता है उससे होमवर्क मांगने जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिकेटर, राइट। और एक कहावत होती है, आपके जो टीचर्स हैं वो ज्यादा जान पाएंगे, सबसे अच्छा रिश्तेदार जो है कौन होता है पता है? कौन होता है? जरूरत पर काम है, बिल्कुल ठीक है। और एक शब्द का आंसर है इसका, बहुत बढ़िया है, फ्रेंड नहीं, और एक और हो सकता है, हालांकि एक शब्द अच्छा है। दूसरा फैमिली, ठीक है, एक शब्द का है। और नहीं, सपोर्टिव तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रहे। आंसर इज पड़ोसी। अगर कोई मुसीबत आती है ना आपके पास, भगवान ना करे आए, बट खुदा ना खास्ता जब होता है, सबसे पहले जो काम आता है वो पड़ोसी होता है, राइट। तो अगर आप अच्छे पड़ोसी हैं तो आपका पड़ोसी भी अच्छा होगा, ठीक है। सो ये सारी क्वालिटीज केवल स्कूल में ही नहीं होती हैं, हमारे लाइफ में भी काम आती है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं
तो ये क्लास में ही काम नहीं आएगा, थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आने वाला है, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, so being empathetic is also very useful in conflict resolution because it can allow you to imagine what others are feeling and understand their actions. अब इसमें क्या हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, अक्सर लड़ाई शांत कौन कराता है? जब थोड़ी बहुत लड़ाई होती है तो शांत कोई कराता है? आप कराते हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका नाम वंश है। अच्छा, आपने पहले बताया था। वंश जो है यानी कि दोनों पार्टी को सुनता है अच्छे से, अप्रोचेबल है। ये क्या कराता है? चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, नेक्स्ट प्लीज प्रोसीड। तो कोई भी ऐसा अगर होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आपको इन सब क्वालिटीज को अपने अंदर क्या करना है? जनरेट करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी हेड ऑफ द स्टेट हमारे कंट्री में आते हैं, यानी किसी दूसरे कंट्री के राजनयिक या राजनेता, या हमारे राजनेता या राजनयिक बाहर जाते हैं, तो बाइलेटरल टॉक्स होते हैं, द्विपक्षीय वार्ता। वो क्या है? डिबेट नहीं, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना विचारों का, ट्रेड हो रहा है, व्यापार के अलावा संधि हो रही है कोई, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में। वो कैसे हो रही है? बातचीत से ही तो हो रही है। कोई अपनी कुछ कहने गया है तो कोई उसकी उनकी सुनेगा, राइट। इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े मुद्दे बातचीत से ही सुलझते हैं। ये तो न्यूज़ में सुना ही होगा कि झगड़ा कभी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे वाकई में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। सो ये सब हमको कम्युनिकेट करना है। और एम्पैथेटिक पर बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन मिला, आपकी मैम ने भी दिया, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे आप। कॉन्फिडेंट बनने का कोई तरीका है किसी के पास? बताइए। प्रैक्टिस। हम स्पीक कर रहे हैं तो अगर बच्चे यहाँ पे ट्राई करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात इन्होंने कही, प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। सुनिए सबने, प्रैक्टिस मेक्स मैन की जगह अब हम क्या यूज करें? अस, ठीक है, वी। वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि टाइम टू चेंज सम थिंग्स इन आवर लाइफ। अब केवल मैन परफेक्ट नहीं होंगे, मैन वुमेन सब परफेक्ट होंगे केवल प्रैक्टिस से, राइट। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, सबने देखा होगा। फाइनल मैच किस किसने देखा था? वाह, 100% अटेंडेंस है आज तो। सूर्या का कैच भी देखा होगा, वाह। उसके बाद सूर्या प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, वो भी देखा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा था सूर्या से कि वो कैच कैसे लिया था, याद है? तो जवाब भी याद होगा। क्या जवाब है बताओ? हाँ बताइए, बैठे बैठे बोलो। आता हूँ। सूर्य कुमार यादव ने बोला था कि मुझे खुद को नहीं पता कि उसने ये कैच कैसे पकड़ी। उसने बोला था कि उस टाइम उसके दिमाग में जो भी आया मुझे जब सही लगा तो मैं वही किया। और वो कैच अपने आप हो गई, मतलब उसके दिमाग में जो भी आया उसने वही। ये आधा बिल्कुल सही है, आधा इनको याद नहीं है। आपको याद है? आइए आइए जल्दी आइए, कम ऑन फास्ट, सेव टाइम। बताइए क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष बताइए जल्दी से। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस तरीके की कैच 150 टाइम्स पकड़ी हुई है। देखा, 150 बार कैच लिया था। और ये बात राहुल द्रविड़ ने बोली थी। गुड, चलिए बैठिए आयुष, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। होता क्या है, जब मैं या हरीश आपके बराबर थे, हमारे स्कूलों की जो एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम चल रही थी, उस टाइम पर रिस्पॉन्स रेट शायद उतना नहीं होता था, या बच्चे उतना ध्यान नहीं देते थे, अवेयर नहीं थे एजुकेशन को लेकर शायद। आज वाकई में वो गोल्डन टाइम है इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, कि बच्चे एजुकेशन को उतना सीरियसली लेते हैं जितना लेना चाहिए। और टीचर्स भी नो डाउट एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो आपने कहा 150 बार कैच लिया, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये मैं ले लूंगा। उसने कहा था कि मैं सोच रहा था कि बाहर फेंक दूं, बट रोहित भाई वॉज टू फार, वो कैच वहां तक नहीं जा पाता, तो सोचा यहीं उछाल कर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट कैसे होंगे देखते हैं।
Being confident in your communication can grow your credibility as a professional. भरोसा होगा उसको अपने ऊपर, तभी वो कैच पकड़ पाया, और उसके ऊपर पूरी टीम टिकी हुई थी, और उसके ऊपर हम लोग टिके हुए थे। राइट? कभी भी जब मैच जीतती है इंडिया कहीं पर भी, तो क्या होता है, 140 करोड़ देशवासियों का कप है, हमेशा ऐसे ही हुआ है ना। सो कितना क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है आपकी, राइट? It also can help you properly communicate your needs. Consider expanding your vocabulary and pausing whenever you are unsure of what you say. ये क्यों आया कि आपके दिमाग में आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चल रहा होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं। हम लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स रहे हैं, आपको भी करना है ना जर्नलिज्म। जर्नलिज्म वाले बच्चे कहाँ गए? आप हैं, ओके। पहली क्लास जो होती है ना जर्नलिज्म की, उसका जो पहला सबक होता है जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद 5 W's + 1 H, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब आपको किसी भी खबर के लिए पता होना चाहिए, राइट? क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है टू द मास। यू आर डूइंग मास कम्युनिकेशन। आप एक साथ करोड़ों लोगों से बात कर रहे हैं। अगर वो फैक्ट सही नहीं होंगे तो आपकी जो खबर है वो गलत हो सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। क्रेडिबिलिटी खराब हो गई एक बार, पास के किराना स्टोर से आप कोई सामान लाए थे, आज चावल खराब निकला, कल दोबारा जाएंगे लेने, आप दूसरा दुकानदार सर्च करेंगे इमीडिएटली हम क्या करते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं। हर प्रोफेशन में यही होगा। अगर सीए ठगेगा, अगली बार कोई और सीए आ जाएगा। इन्होंने मेरी एप्लीकेशन अच्छे से नहीं बनाई, दूसरी बार कोई और आ जाएगा। सफलता पाना आसान है, सफलता को बनाए रखना मुश्किल है। समझ आया? सूर्य ने कैच तो पकड़ लिया, वर्ल्ड कप जीत भी गए, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर खेलना है तो। एक कैच और एक मैच टीम में बनाए नहीं रखेगा आपको, राइट? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलरली रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज ही राइटली मेंशन, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू बी कॉन्फिडेंट। केवल बोलने के लिए नहीं, लिखने के लिए भी। आपको राइटिंग करवाते होंगे, आई एम श्योर टीचर्स कहते होंगे कि राइटिंग करो, राइटिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे ना कोई अच्छा, तो राइटिंग होती है, ये हिस्सा जो है ना दुख जाता है लिखते हुए। अभी आपका वो दौर आया नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि आपको पहले से पता हो कि जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की या हमको नहीं बताया गया, हमको पता नहीं चला, वो आपको तो टाइम पर पता लगे। सो बी रेडी, राइट समथिंग फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। एम आई राइट मैम? 20 मिनट अगर लिखेंगे, एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना, आपको आदत होगी, इस पूरे हिस्से में कुछ असर नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन कल या आज जब भी टाइम मिले, आज छुट्टी आपकी, मुझे बताया गया है, कोशिश करना 15 मिनट लिख कर देखना, 15 मिनट, पता चलेगा कि स्ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर 10 मिनट रोज आज से शुरू कर दिया, हाई स्कूल का पेपर है इस साल, मैं बता रहा हूं आपको, 2 घंटे में करके बैठोगे आराम से, 2.25 घंटे में, उसके बाद पूरा पेपर चेक करने के बाद भी 10 मिनट बचेंगे। गारंटी है इस बात की। हालांकि गारंटी चलेगी या नहीं चलेगी ये तो शब्द पर निर्भर करता है, लेकिन मेरी भावना है, ये आपके लिए शुभकामनाओं के साथ है, ऐसा होगा। 10 मिनट ट्राई करिए आज से, ठीक है ना? 10 मिनट से शुरू कराते हैं अगर इन्होंने किया तो। सो उस तरीके से जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा, कुछ इस प्रेजेंटेशन जो चल रही है, इस अभी हम वी हैव रीच्ड टिल स्लाइड 6। आपने ऑब्जर्व किया प्रेजेंटेशन में? किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया प्रेजेंटेशन में? क्रिएटिव, ओके। और कुछ किसी ने? पिक्चर्स का यूज किया गया है। पिक्चर्स कुछ कह रही हैं, एक्सप्रेसिव है। थैंक यू। और वेरी सिंपल, वेरी गुड। और कम्युनिकेशन को और एनहांस करने के लिए, हाँ, कम्युनिकेशन को हम बात ही कर रहे हैं, एनहांस भी हो रहा है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आदित्य चोपड़ा। अगली फिल्म बनाओ भाई, हीरो जरूर ले लूंगा मुझको, मुझे एक्टिंग भी आती है थोड़ी बहुत। सो आदित्य, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स क्यों हैं? एक और कहावत हम पढ़ते हैं कि एक पिक्चर जो है ना वो 1000 शब्द बयां कर सकती है। अ पिक्चर कैन डिस्क्राइब 1000 वर्ड्स। ये सब इसीलिए है क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं
ये स्माइली है। कितने बच्चे हैं आजकल जो स्माइली से कम्युनिकेट करते हैं? धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। ये पीछे बिल्कुल नहीं होती है क्या बात? आमने सामने गुत्थम गुत्था होता है क्या? जनरली वी यूज इमोजीज, राइट? इमोजीज क्या है? एक्सप्रेशंस है। आप हंस रहे हैं, आपने 5 लेटर टाइप करने की जगह एक स्माइली भेज दिया। आप गुस्सा हो रहे हैं, एंग्री 5 लेटर का वर्ड है, उसकी जगह आपने इमोजी भेज दिया। क्या हो रहा है? ये एक्सप्रेस ही तो हो रहा है ना, एक्सप्रेशन है। हर चीज एक्सप्रेसिव होगी कम्युनिकेशन में, और होती है। आप घर जाएंगे, आप आई थिंक सबका एज 14-16 के आसपास हो रहा होगा, सभी का अभी एज आपका है ना, इसी बीच में होगा। आपके घरों में बड़े हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा हम बड़े हो रहे हैं, हमें हर बात पे टोका जा रहा है ना। बच्चों को आपको लग रहा होगा नहीं अब ये तो हम कर लेंगे, फिर भी क्यों नहीं हमको कहा जा रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस सब कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ऐसा लगता है। उसका कारण ये है कि आप जिस दौर में हैं और आपके घर में जो लोग जिस दौर में हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं। उन्होंने यहां से वहां तक की यात्रा तय कर ली है। वो ये चाहते हैं कि आपकी यहां से वहां तक की यात्रा अच्छे से हो। हम कहते हैं ना, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, ये सब सुनते होंगे वो अनाउंसमेंट, वो आंटी का रेलवे वाली, या आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्डियंस हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस दौर से लेके और उनके दौर में जहां वो आज है वहां तक आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय रहे, इसीलिए टोकते हैं। ठीक है, समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आपके पास अभी तजुर्बा आना बाकी है, आपके पास ऊर्जा सबसे ज्यादा है, समय पर्याप्त है ना, समय पे भोजन कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास क्या आना बाकी है? तजुर्बा, जो हम टीचर्स के पास ज्यादा है। हमारे पास तो नहीं, मेरे सामने जो टीचर्स बैठे हैं उनके पास ज्यादा है, क्योंकि मैं वो जिस दौर में आपके पास बैठे मैं भी वहीं से गुजरा हूँ, मुझे भी टीचर ने पढ़ाया तब मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, है ना। सो ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी बात कह पाए। इफ यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस यू मे लूज द ग्रिप ऑफ द ऑडियंस। और अगर कम्युनिकेट करना है तो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपने जैसे मुझसे पूछा था कि हाउ डिड यू टैकल द सिचुएशन, उसका कारण ये है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान पद्धति है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, मैं उसको पढ़ता हूँ। अगर मैं वो ऐसा नहीं करूंगा तो जैसे नई शिक्षा नीति आई, मैंने उसका ड्राफ्ट पढ़ा, जितने प्रोग्राम्स हैं आज, चाहे पीएमश्री के स्कूल्स हैं, या टीचर ट्रेनिंग है, या एनपीएसटी है जिसमें नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है, या एनएमएम है, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है, ये सब के बारे में मैं पढ़ता हूँ। प्रोग्राम का कंसेप्ट नोट मंगवाता हूँ, मेरे हालांकि मुझे देते हैं प्रोग्राम ऑफिसर। आई मस्ट रीड इट। अगर मैं वो पढ़ूंगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा। हाउ टू एंगेज द ऑडियंस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने आदित्य बताया कि प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स है। पिक्चर्स क्या है? एक्सप्रेस कर रही हैं। आपने कहा कि हमको कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। सिमिलरली एक चीज होती है, एक और बात मैं यहाँ पर बताऊंगा, सिर्फ कॉन्फिडेंट होना ही काफी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे ये प्रेजेंटेशन आपने, किसने कहा था इजी टू अंडरस्टैंड है? किसने कहा था? आपने कहा था इजी टू अंडरस्टैंड है। ये इजी टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि इसमें 4 लोगों ने अपना दिमाग खर्च किया, केवल मेरे दिमाग से नहीं हुआ ऐसा। मैंने जो प्रिपेयर किया हुआ था वो अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए था, और टीचर्स के लिए था जो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर लेवल तक हैं, उनके लेवल का कंटेंट था इसमें। इसको हमने चेंज किया, सोचा कि हमें जिनसे कम्युनिकेट करना है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि नो योर ऑडियंस। आपको अगर जजमेंट करना है तो नो योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन है? वो गांव का, वो अंतिम पंक्ति का आदमी जिसको बेचारे के पास पैसे नहीं है कोर्ट में आने के, बट स्टिल ही बिलीव्स इन द जुडिशियल सिस्टम कि मुझे यहां न्याय मिलेगा। आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो ना उसके साथ। नो योर ऑडियंस। बीच में वकील है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर, आपके सामने भी बैरियर होगा ना। सो नो योर ऑडियंस। आपको पता है कि इसका जो असर है, जो आप ऑर्डर पास करेंगे, जो जजमेंट करेंगे, उसका असर उस पर होगा। सो नो योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर कम्युनिकेशन कि बात किससे कर रहे हैं आप, राइट। झगड़ा होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि उस वक्त जो हृदय के उद्गार है आप पे, वो आपको प्रोवोक कर रहे होते हैं। जो इंटेंसिटी होती है वो आपको ये जानने ही नहीं देती कि आप क्या बोल रहे हैं। एक
बहुत ही अच्छे सेंट हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो ये कहते हैं कि जब आपको किसी से कुछ कहना हो इमीडिएटली मत कहिए। सुना है? इमीडिएटली ना कहिए। इसका कारण ये है कि इमीडिएट एक्शन जो होगा वो नुकसान देगा, थोड़ी देर बाद आपका नुकसान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द वे टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड कि और हमारी जो और क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। लाइक द पिक्चर, इज इट अ फेवरेट कार्टून? मेरा भी फेवरेट कार्टून आज तक यही है, मैं भी अपने फ्री टाइम में यही देखता हूं। प्लीज प्रोसीड। अब फ्रेंडली होना क्यों जरूरी है? आपको मालूम है ना, ये दोनों लड़ते हैं, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है ना टॉम, जब उसके ऊपर बड़ा बिल्ला आ जाता है तो यही बचाता है उसको जाके। इसका कारण ये है कि आप स्कूल में कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन अगर स्कूल के बाहर झगड़ा हो जाए किसी आपके फ्रेंड का, तो आप सबको एक होना चाहिए कि यार ये कैसे झगड़ा कर रहा है मेरे दोस्त से, ये तो हमारे स्कूल का है। सो हम लोगों को मालूम है ना कि हमको वो एक कहानी भी सुनाई जाती है कि वो एक लकड़ी किसान के बेटे ने दी, अब तो कहा इसको तोड़ो, फिर उसने कहा और तोड़ो, फिर और तोड़ो, फिर नहीं टूटी। वो क्यों? ये सदा से चली आ रही है कहानी और सदा चलेगी। हम इंडिया के बाहर जाते हैं, कितने बच्चे जो फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जज साहिबा तो आप इंडिया में ही बन जाएगी, बट गुड, हाँ बस बहुत कम बच्चे हैं बाहर जाने वाले। अभी उठाया था हाथ, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड इफ यू विश टू गो अब्रॉड। बाहर जाना चाहते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है आपके लिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पूछिए क्यों। हम अपनी कंट्री में हैं, हम अपने देश में हैं, हम कलेक्टिवली साथ रहते हैं, राइट? लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना तो वह गिने चुने इंडियंस होते हैं, पता है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडियंस का ग्रुप खोजते हैं। तो हमें क्यों? क्योंकि हमें एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि हम अकेले हैं, कल को कुछ हो गया, बीमार ही हो गए तो दवाई कौन ला कर देगा। सो ये जो क्वालिटी है ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेट करोगे कैसे आप? मैं जब बाहर गया अगर मान लो और मैंने अपने दोस्त नहीं बना पाए, क्योंकि अगर आप फ्रेंडली नहीं है तो आप जाहिर सी बात है किसी के फ्रेंड नहीं बन पाएंगे आप, और ना कोई आपको फ्रेंड बन पाएगा, ना तो आप हेल्प करने की सिचुएशन में होंगे। हालांकि आप वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि बाहर है, लेकिन जो वहां का रेजिडेंट है या पहले से रह रहा है, he or she may not be able to help you if you need it। और ऐसी सिचुएशंस में हेल्प की दरकार ज्यादा होती है। तो आपको डिप्लोमेटिकली भी समझना होगा कि यार आप पढ़ने गए हैं तो यू हैव टू बी रेडी। सो दिस स्लाइड विल हेल्प यू कि स्पीकिंग एंड राइटिंग इन अ फ्रेंडली टोन, जैसे मैंने आपसे कहा कि फोन पर आप बात कर रहे हैं, आपके पास जेस्चर एक्सप्रेस करने के लिए केवल वॉइस है। क्या है? केवल आपका टोन है। आपका नाम? देव। मैं यहाँ आया देव के पास, मैं कहूँ देव चलो वहां बैठो जाके, 99% श्योर है कि देव ये कुर्सी खाली नहीं करेगा। लेकिन मैं कहूँ देव यार आज ऐसा है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द है, प्लीज भाई वहां बैठ जाएगा आज, 200% कुर्सी छोड़ेगा ये। तो कारण क्या है? द अप्रोच, द टोन यू आर यूजिंग, राइट? एक्सप्रेस योर इमोशंस। कम्युनिकेशन इज टोटली एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेस कैसे करोगे आप? फिल्में बनाई आपने, फिल्में क्या होती है? मैसेज कन्वे करती हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं। आप फिल्में देखकर हंसते हो, आपको आपके इमोशंस होते हैं, अगर उसमें इमोशनल सीन है तो आप रोते भी हो। कितने लोग हैं जो सिनेमा हॉल में रोए हैं? मजबूत सीए बनो यार, ऐसे रोगे तो पैसे कैसे बचाओगे हमारे? तो कहने का मतलब ये, हम लोग वैसे हम आपके यहाँ कौन टाइप लोग हैं, हम लोग हमारे पूरे घर के लोग जाते थे और वो हम आपके यहाँ कौन में उसकी भाभी की जब डेथ होती है पूरा लाइन रो रहा है बैठ के, मैं देख रहा हूँ अगल बगल हो क्या रहा है। हम आपके यहाँ कौन देखिए किसी ने? अब तो आप लोगों ने टीवी में देखी होगी, वो 94 का दौर था, 96 90s का, जब हम सिनेमा हॉल जाते थे, सिंगल हॉल थिएटर होता था, तो पूरा खानदान रो रहा है बैठ के अगल बगल पड़ोस में। तो कारण क्या है कि इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, राइट? वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बी रेडी टू बी अ फ्रेंड। पहले दोस्त बनिए, उसके बाद दोस्त आपके ऑटोमेटिकली बनेंगे। लेकिन ऐसा 100% सही हो कि सामने वाला सही ही होगा, ये तो नहीं होगा। वो है ना कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा ही होगा। अगर वो दोस्त आपका अच्छा नहीं हुआ, उसने डिच किया किसी वजह से, तो एट दैट टाइम यू मस्ट गेट योर लेसन कि हाँ इस टाइप के लोग ऐसे हैं, सो मेंटेन डिस्टेंस। उनके लिए द्वेष नहीं रखना है, उनके लिए आपको कुछ बुरा नहीं सोचना है। लेट्स प्रोसीड इन योर ओन पेस, है ना?
अब ऑब्जर्वेंट, जैसा मैंने आपसे कहा था ऑब्जर्व करना है, सबसे पहला वर्ड है इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। जैसे ये पीछे वाले जो थोड़े बच्चे हैं इनको इंटरेस्ट कम हो रहा है, एक तो ये पीछे बैठे हैं बेचारे, है ना। अब अगर आप नॉन ऑब्जर्वेंट होंगे तो नुकसान होगा आपका। अगर आप क्लास में पीछे भी बैठते हैं, पीछे बैठने का एक अलग मजा है। एक कार्टून आता है आजकल T2, वो बैक बेंचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, देख T2 देखता है कोई? आप तीनों मेरे दोस्त बन सकते हैं, मैं भी T2 देखता हूँ। So, होता क्या है कि एवरीथिंग इज एबल टू कम्युनिकेट, किसी ना किसी तरीके से वो कम्युनिकेट कर ही सकती है आपसे, राइट। ऑब्जर्वेंट होना क्यों जरूरी है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज इज an important aspect of communication. Recognizing your student and a person's body language can give you insight into how they are feeling. टीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी स्लाइड में, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करती हैं। सिमिलरली आपको ऑब्जर्व करना है कि वो पढ़ाती कैसे हैं। भीष्म पितामह के टाइप अगर हम बात करें, इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक प्रोफेसर है, हिज एज इज अराउंड 80 years नाउ, वो वॉकर से चलते हैं, बट आज भी जब मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग होती है टाइम से पहले आते हैं। और उनकी एक कहानी जो मतलब जिसने मेरे दिल को छू रखा है, वो कहते हैं कि देयर इज अ स्कूल इन बैंगलोर एंड द टाइम ऑफ द क्लास इज 8 AM. सो द डेप्यूटी टीचर ऑफ द क्लास होल्ड्स अ अलार्म ऑफ 7:55 फॉर हिमसेल्फ। 7:55 का अलार्म लगा हुआ है उस टीचर की घड़ी में, मोबाइल में, कि 7:55 पे मुझे क्लास में जाना है। ये उनके सिखाए हुए टीचर ने उदाहरण क्रिएट किया है। जो टीचर खुद आज 80 years ऑफ एज अटेन कर चुके हैं, उनका स्टूडेंट है, आई एम श्योर वो भी बहुत काफ़ी एजेड होंगे। तो 7:55 का क्यों है कि 8 बजे की क्लास में जब मेरे बच्चे आएंगे मुझे उससे पहले पहुंचना है। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं कोशिश करूंगा, शायद कभी मतलब मेरा इतना अच्छा भाग्य रहा या आपका भाग्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, कि क्या पता ऐसे रास्ते में बना सकूं कि मैं उन्हें आपसे कभी मिलवा पाऊँ। लिसनिंग हिम इज अ ब्लिस। हम जो आज किताबें पढ़ रहे हैं, जिस सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं, उसको डेवलप ही उन्होंने किया है, ठीक है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है कि अगर आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि आज मेरे नंबर कम आए, ठीक है, लेट मी ऑब्जर्व कि मैंने क्या गलत किया था, उससे क्या होगा कि टीचर को आपको कहने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है टीचर अवॉइड करते हैं कि बच्चे बुरा मान जाएंगे क्लास में, ऐसा होता है आजकल, ज़्यादा होने लगा है, पहले नहीं होता था। पहले तो जो सामान आसपास अवेलेबल होता था उसी से पता चल जाता था। वो चौक भी हो सकती थी, वो डस्टर भी हो सकता था, स्केल होता था लकड़ी का, वो टूट भी जाते थे हमारे ऊपर, मतलब कोई सामान बचा नहीं था मेरे पास, मेरे लिए तो सब यूज़ हो जाता था। कपड़े की दुकान देखी किसी ने, जो थान वो गोल लपेट कर जहाँ कपड़े मिलते हैं, देखें, कपड़े लेने जाते होंगे, उसमें एक डंडा जो होता है, इसमें कपड़ा लगता होता है, गोल होता है इतना बड़ा, उससे हमारा जो है कार्यक्रम हुआ करता था, हमारे और हमारे तमाम दोस्तों का। तो कारण ये है कि वही बात करता था डंडा हम लोगों से, सर तो बात करते ही नहीं थे। हम लोग इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते थे कि आज तो यही बात करेगा, सर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि काम तो हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो द थिंग इज, आपको खुद को ऑब्जर्व पहले करना होगा। टीचर का नाम बाद में लेंगे आप कि इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, या इनका हमें पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि या तो आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में, या हो सकता है कि टीचर के पास बच्चे ज़्यादा है तो वो ध्यान नहीं दे पाए। तो उसको केस में आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बस केवल इतना बोलना है। हमारे टाइम में क्या होता था, झिझक ये होती थी कि हम यही नहीं बोल पाते थे, बट बाय गॉड ग्रेस आज मैं जिन भी स्कूलों में जाता हूँ वहाँ ऐसा नहीं होता। आज बच्चे फॉरवर्डेड हैं एंड दे आर स्पीकिंग फॉरवर्ड कि हमें मैम नहीं समझ में आया, लेट अस अंडरस्टैंड अगेन, प्लीज टेक अ पॉज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, ऑब्जर्वेंट क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और जैसे इसमें एग्जाम्पल भी मैंने रखा है कि अगर आपका कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, कोई रिलैक्स है, तो भी आप उससे फील, आप अक्सर कहते होंगे क्या बात है आज बड़े दुखी से लग रहे हो, मुंह लटका हुआ है, ऐसा कुछ होता है। आप अपने दोस्तों को देखते हो, आज इसका मुंह लटका हुआ है, मम्मी ने सुबह सुबह प्रसाद दे दिया है क्या, ऐसा कहते होंगे ना, क्या हुआ आज पापा ने तुम्हें प्रसाद दे दिया है क्या, ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, आप ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो। आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व नहीं करना है कि कौन पिट कर आया है, कि किसके चेहरे पर ये लिखा हुआ है कि आज ये मुंह इसका लटक के घुटने तक पहुंच गया है, नहीं। आज ये भी देखना है कि कौन, आज अगर टेस्ट है तो कौन सबसे ज़्यादा फ्री है, इसका मतलब ये पढ़कर आया है। क्योंकि अगर आप पढ़कर आए हैं तो आप रिलैक्स रहेंगे।
अगर आप कम पढ़कर आए हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेन रहेगा, और बिल्कुल पढ़कर नहीं आए तो या तो आप रिलैक्स रहेंगे या आप बहुत तनाव में रहेंगे। ठीक है, या तो आप राजा बाबू बनेंगे या नन्नू बनेंगे। राजा बाबू देखिए सबने। सो कहने का मतलब ये है, देखो ये केवल आपको एंगेज करने के तरीके हैं। मैं आपको केवल तरीके बता सकता हूँ, मैं आपको केवल वो दौर बता सकता हूँ क्योंकि जिया मैंने भी है। वो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ आपके टीचर के जैसे टीचर्स का। मैं आपको केवल वो तरीके बता सकता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं अगले 5-7 सालों में। अगर आपने इन टेक्निक्स को यूज किया तो यू मे सक्सीड एनी हाउ। जब आप अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसके बाद आपके सामने इंटरव्यूज आएंगे, वहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा काम आएंगी। 12th फेल देखिए सबने, आपको याद है जब उसको बाहर निकाल देते हैं इंटरव्यू के रूम से तो वो अपना टाई वाई खोल के कोट लेके हाथ में बैठ जाता है। वो अब चूंकि रियलिस्टिक फिल्म है बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ मनोज कुमार शर्मा, वो जब दूसरी बार गया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, उसने कोट पहना नहीं था, कि कोट हाथ में था। क्यों हाथ में था? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं आया था। उसका कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से भी वैसा ही लग रहा था जैसे पहले था। राइट, आई एम श्योर आप सब इतने लकी हो कि मनोज कुमार शर्मा से रियल लाइफ में मिल पाया। ठीक है, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन हर कोई होता है, बट इंस्पिरेशन पता केवल उसी की चलती है जिसको सक्सेस मिलती है। कि और सक्सेस मिलना ही केवल लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस के मायने आप खुद डिफाइन करेंगे। राइट, क्योंकि अगर आप सक्सेस के मायने अपने लिए डिफाइन नहीं करेंगे तो लोग डिफाइन करने लगेंगे, और जब आपको लोग डिफाइन करने लगेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज ट्राई टू फाइंड जॉय ऑफ लाइफ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है जॉय गुप्ता। वो आ रहा था एक दिन, एयरपोर्ट पर उतरा तो हमारे यहाँ मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, तो बॉस सेड, द फॉरेनर came our office and they asked from our boss, where is Joy? अब हमारे बॉस को पता था कि Joy is always late, his flight is delayed. So my boss immediately replied the guest, Joy is everywhere, you may find it in your life, go and ask where is Joy. तो उन्होंने मुझे आपने किसने बताया था? आदित्य जैन नाम है आपका? क्या नाम है? वंश जैन। एक्चुअली वो मिस्टर जैन ही है, मैंने जय जिनेंद्र उन्हीं से सीखा था। ही इज इम्पैकेबल, मतलब उनका जो कमांड ऑफ बिजनेस है, कमांड ऑफ कम्युनिकेशन है, और दुनिया ट्रैवल करते हैं वो, तो जो एक्सपोजर है वो अनबीटेबल है। मैंने उन्हीं से सीखा है बहुत सारी चीजें। राइट, सो इसी बात पर उन्होंने 15 मिनट निकाल दिया, एंड द मोमेंट 15 मिनट हुए, थोड़ी देर बाद जॉय, सर मे आई कम इन। सो जॉय ऑफ लाइफ आ गया है। सो आपके भी लाइफ में जॉय आ जाएगा, बट आपको खुद तय करना पड़ेगा कि मुझे जॉय मिलता कहाँ है। जॉय राशन की दुकान पे नहीं मिलता है, ठीक है ना? जॉय इन बैग्स के अंदर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जॉय कैसे मिलेगा? लेट यू डिसाइड एंड लेट यू डिफाइन योर जॉय, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर लाइफ व्हेन यू प्रोसीड अहेड। इट्स अ स्लाइड, इट्स अ कॉमन स्लाइड। आई रिक्वेस्ट माय टीचर्स, योर टीचर्स, they are polite, I know, they have to be, because they are bound with certain boundaries. उनकी एक नियत सीमा है, ठीक है? और आपकी जो नियत सीमा है उसको पोलाइट करना ही होगा आपको। अगर आप पोलाइट नहीं करेंगे तो ये आपका नुकसान, ना तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो जब आप ना पढ़ पाएंगे और ना समझ पाएंगे तो स्कोर कितना करेंगे? कम ही करेंगे, अच्छा तो नहीं होगा। और आजकल अच्छे की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं है। किसकी रिक्वायरमेंट है? बहुत अच्छे की, बेस्ट से भी ऊपर है ना? अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, आप अपना चारों बैग रखिए यहाँ सीट पर और आगे आ जाइए, और आप चारों भी आ जाइए। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? यहाँ आ जाइए एक तरफ, आप सब इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, 1 बाय 1 खड़े हो जाइए। ओके, सो पे अटेंशन एवरीवन। आपको करना क्या है देखिए ध्यान से। ये सब जहां खड़े हैं, लेट्स अज्यूम कि ये इनका घर है, ठीक है? और इस कॉर्नर पे आपका स्कूल, ठीक है? अब आप लोग नॉर्मल पेस में चलिए। कोई टाइमर लगाएगा फोन में? प्लीज टाइमर लगाइए फोन में। हाँ, कोई भी लगा लिया? चलिए मैं 3, 2, 1 करूंगा, आप नॉर्मल पेस में वॉक करेंगे, ठीक है? रेडी? 3, 2, 1 नॉर्मल पेस में करिए। ये स्कूल आ रहे हैं, ठीक है? ओके, टर्न अराउंड, प्लीज बी देयर। कितना टाइम लगा? 7.4। लेट्स की 5-6 सेकंड में ये स्कूल पहुंच गए। अब आप सब वहां देखिए, टर्न अराउंड, हाँ ठीक है? अब ये इनका घर है, लेट्स अज्यूम ये इनका घर है, ठीक है? और अब आपका स्कूल यहां पर है, ठीक है?
अब वहीं देखिए और अपने स्कूल आइए, कम ऑन, धीरे धीरे, ऐसा ना हो गिर पड़े। टाइम देखते रहिएगा कितना लग रहा है। हाँ, अब ओके, कितना टाइम लगा? 11.9, अप्रॉक्स 12, 5-6 सेकंड का फर्क है, लगभग 2 गुने का आ गया। इससे क्या समझ में आया? ओके, प्लीज बी सीटेड। अब इसको कोई एक्सप्लेन करे प्लीज, क्या समझ में आया इससे, बताइए। देखो मैं बताता हूं, आपको आया? चलो कोई बात नहीं आता यार, इस टाइम पर बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूं, आप सीधे सीधे चल रहे थे, 6 सेकंड में पहुंच गए, बट आप बैकवर्ड आ रहे थे, 12 सेकंड लगे, 2 गुना समय लगा। आज नंबर कम आए मान लो, 2-3 दिन बाद फिर कोई दूसरा टेस्ट होगा। अब आपने सोचा कि यार नंबर कम आए थे, यानी कि आप कल के बारे में सोच रहे हैं, तो अगले टेस्ट में क्या होगा? और कम आएंगे। अब जो हो गया, क्या कहते हैं, बीती ताही विसार दो, आगे की सुध लो। तो ये जो एक्सरसाइज आपने की है यही है, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर फ्यूचर एंड प्रोसीड इन योर नॉर्मल पेस। आया समझ में? ये करवाने का जो कारण था वो ये था कि अगर आप उल्टा चलेंगे, यानी कि गुजरे हुए कल का बोझ टांगे रहेंगे इस बैग में, तो आज जो मिलने वाला है अच्छा, उसे आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समझ आया? सिमिलरली आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, राइट? आपका सर्कल यानी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज को फील करेंगे, फिर आपसे दूर होने लगेंगे। दे हैव टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम यू, क्योंकि आप ऐसा करने लग रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सब चीजें इसलिए हैं, एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन ग्रोथ। एक कहावत होती है, जब आप अक्सर आप घरों में सुनते होंगे, आपके घरों में जब फैमिली डिस्कशन होता होगा कुछ, आजकल कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी को नहीं कुछ करता है, सबको अपना अपना करना पड़ता है, होता है। ये सदा के लिए बना हुआ है, स्कूल में भी ऐसे ही बना रहेगा। ये आपके नंबर अच्छे आए नहीं आए किसी को कोई लेना देना नहीं है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको उससे लेने देना होना चाहिए। अगर आज 20, मेरा भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे डैड का सबको घर में जूते का नंबर पता था, मुझे सबसे ज्यादा पता था। 20 नंबर का टेस्ट हुआ करता था, तो डैड को तो ध्यान रहता नहीं है कि 20 का है कि 10 का है, तो वो कह के जाते थे ऑफिस जा रहा हूं, कल अगर 10 में से 8 नहीं आए सोच लेना फिर। तो मेरा भाई क्या कहता था, 20 नंबर का टेस्ट हुआ है ना, तो 8 के हिसाब से 16 आने चाहिए थे, अब आए हैं 14 नंबर, तो 10 के हिसाब से कितने आए हैं? 7। तो वो 1 नंबर में बड़ा खुश है मेरा भाई, आज तो बहुत मजा आएगा मुझे, ठीक है। तो डैडी आए, कितने नंबर आए? अब हम मेरा फोकस कहाँ 14 पर नहीं है कि जो आए हैं, मेरा नंबर कहाँ पर है? 16 क्यों नहीं आए? 2 कम है, इस पे मेरा फोकस है, राइट। तो होता क्या है कि ये आपका परिवार आपके साथ जेल हो रहा है, आपके भाई बहन है, वो आपको, उनका मोटो पिटवाना नहीं है, उनका मोटो आपको अच्छा बनाना है, राइट। हालांकि उस जमाने में होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। सो द थिंग इज, अगर आपके 14 आए, लेट्स कीप इट विद योर सेल्फ, ट्राई टू अचीव 18 नेक्स्ट टाइम एंड 20 फॉर द नेक्स्ट टाइम। 14 के बाद ही 20 का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, हो सकता है 18 पर रुक जाए, 20 भी आएंगे। अगर 18 आए हैं तो 20 भी आएंगे। एवरीवन शुड बी खुश। अगर आप खुश नहीं होंगे तो इस पूरे काम का कोई लाभ नहीं होगा मुझे, ठीक है, और आपके स्कूल को भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसका एडवांटेज नहीं उठा पाए तो आपके स्कूल को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर सूर्या ने वो कैच छोड़ दिया होता तो पूरा टीम हार जाती। सिमिलरली अगर आपको उसका लाभ नहीं मिला तो मेरा भी नुकसान है, स्कूल का भी नुकसान है, कलेक्टिवली द रिजल्ट विल बी फेल, राइट। सो पोलाइट आई थिंक हो गया, बहुत ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करते। यू ऑल मस्ट बी पोलाइट इन योर क्लासरूम, इन योर लाइफ, इन योर नेचर। पोलाइटनेस शुड बी देयर। ये आपको हेल्प करेगी। जैसे मैंने इनसे कहा पोलाइटली, मैंने बोला कि सर आज आप वहाँ बैठ जाइए सो दैट आई कैन सिट हियर। अगर पोलाइट नहीं होगा तो ये मुझे बैठने नहीं देगा, ठीक है। ट्रेन में अक्सर, ट्रेन में सब लोग सफर करते हैं ना, पता है ना, भैया थोड़ा खिसक जाइए, अगले स्टेशन पे उतरना है, करते हैं। किस किसने किया ऐसा? आपने सब काम किए हुए हैं। मल्टी डाइवर्स, आपका मल्टी फैसेटेड एक्सपीरियंस है आपका। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया ट्रेन में बचपन से, और बहुत अर्ली एज में मैंने अकेले भी ट्रैवल किया है।
तो डर भी लगता था कि जब आप घर से निकलते हैं अकेले तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि, लेकिन वही आपका एक मोमेंट होगा व्हेन यू एंजॉय योर लाइफ कि हाँ दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है। तमाम लोग आएंगे, कोई धक्का दे रहा है, कोई कह रहा है ठीक से बैठ जाओ, कोई कह रहा है बैठे ही क्यों हो, राइट। हर तरीके के लोग मिलेंगे और वही आपका एक्सपीरियंस होगा। जितना आप घूमेंगे, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, यू विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना। तो पोलाइटनेस इसलिए ज़रूरी है। लेट्स प्रोसीड। अब इंक्विजिटिव क्यों होना चाहिए? सॉरी, नॉलेज गेन करने के लिए। ओके ग्रेट। और इंक्विजिटिव क्यों होना चाहिए? इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। ओके, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, और क्या गेन करने के लिए इंक्विजिटिव होना चाहिए? क्लैरिटी। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ रीजन, हाँ रीजन ठीक है, क्लैरिफिकेशन और रीजन ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, लेट्स कीप इट रीजन 4। फिफ्थ, व्हाई शुड वी बी other expectations. अदर फेसेट्स कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन तो आपकी हो सकती है, फेसेट्स ऑफ द फैक्ट, है ना। वही वाला हाल है ना कि अगर कोई गोला मुझे दिख रहा है तो मेरे साइड से कैसा दिख रहा है और वहां से कैसा दिख रहा होगा, आई कैन नॉट जज। अभी हम दिन में यहाँ बैठे हुए तो यहाँ हमारे यहाँ रोशनी है, यानी सूरज इधर है। यूएस में नहीं होगा, यूएस में अंधेरा होगा, तो वहाँ वालों को क्या दिख रहा हो? सूरज नहीं दिख रहा होगा, है ना। सो ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। गुड, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। आस्किंग डिटेल्ड एंड थॉटफुल क्वेश्चंस कैन लीड यू टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हेल्प clarify the instructions. Skilled communicators often ask questions to strengthen their understanding of others' expectations, intentions and feelings. ये सब चीजें आपके सामने आएंगी जिसमें आप सीखेंगे। जिज्ञासु होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन ऐसा है जो क्लास में सबसे ज्यादा सवाल करता है? और आप भी करती हैं? हाँ, आप करती होंगी। गुड, मुझे अच्छा लगा आपको देखकर। और थोड़ा कम सवाल कौन करता है? कम वाले कौन है? अच्छा, पत्रकार को तो ज्यादा पूछने चाहिए, तो पीछे वाले भी पूछते हैं। अच्छा, सबसे कम कौन पूछता है? गुड, आई लाइक इट। और जो बिल्कुल नहीं पूछता है वो हाथ उठाए, पक्ष ओके नीचे। जो नहीं पूछता है वो उठाए। आप सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने बहुत समय तक सवाल नहीं पूछे, फिर जिंदगी मुझसे सवाल कर रही है। तो अभी जो सवाल नहीं करेगा ना, कुछ समय बाद जिंदगी आपसे सवाल करने लगेगी, तब आपको लगेगा कि तभी जिज्ञासु हो जाते तो अच्छा लगता। अब जिज्ञासु बनने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जिज्ञासु होना क्यों जरूरी है? Asking questions in a public communication channel is especially effective because it can ensure you receive an answer quickly and allow others who may have been curious a chance to learn as well. This will help your fellow students to learn the answer. जब collective QA होता है, जैसे हम पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की बात करें, वहाँ पर एक रिटन क्वेश्चन आता है, उसका रिटन जवाब दिया जाता है। अभी आप बड़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। सो जो पब्लिक चैनल है वहाँ पर जैसे 10 लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं और एक विसिनिटी में रहते हैं, सबके कॉमन प्रॉब्लम है। एक आदमी ने एक लेटर लिखा, ठीक है, उसका एक रिटन जवाब आया। सो जो जवाब एक इंडिविजुअल को एड्रेस किया गया है, दिस विल केटर द नीड्स ऑफ द 10 फेलो पड़ोसी। कारण क्या है कि कलेक्टिवली योर क्वेश्चन वाज सेम। तो आपको क्या हुआ? आपने क्या हेल्प किया? जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके नेबर हैं, उनकी भी सेम प्रॉब्लम को आपने एड्रेस करवाया। अब सबको आंसर मिला। सबका आंसर क्या हो गया? सबकी क्वेरी क्या हो गई? रिजॉल्व हो गई, राइट। सो दिस इज द चैनल विच यू हैव क्रिएटेड जस्ट बिकॉज यू आर क्यूरियस, राइट। या आप उन लोगों में से थे जिन्हें समस्या तो दिख रही है बट आप समाधान भी तलाश रहे हैं, ठीक है। समस्या सर्वत्र विद्यमान है, पता है ना। समस्या आती ही रहेगी। समस्या उस बेल की तरह है जिसका पेड़ काट भी दिया ना तो 2 दिन बाद फिर निकल आएगा। लेकिन अगर स्वादिष्ट आम खाने हैं तो बहुत सालों तक पेड़ को पानी देना पड़ेगा, तब आम आएंगे। लेकिन बहुत दिनों बाद आम आएंगे, इस इंतजार में हम ऐसा तो नहीं करते ना कि आम का पेड़ ही नहीं लगाते। आम का सीजन चल रहा है ना, कौन कौन आम खाता है? वाह क्या बात है, यू ऑल और मैंगो। चलो गुड है। तो मैंगो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सीजन में मैंगो आता है। आम फलों का राजा है, ठीक है। रिलायबल होना, जैसे आपने कहा था किसी ने कि बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी का आपने जिक्र किया था, हम लोगों ने एजेंडे में भी देखा था। रिलायबल होंगे तभी आपका फ्रेंड आपको कुछ बताएगा। लेकिन एक और फैक्टर क्या है? आपने अपनी सब बातें अपने दोस्त को बताई। अब आपने क्या करा? आपको पता चला कि ये तो नुकसान कर रहा है। देन यू मस्ट बी रेडी कि ये लेसन है, इसको सब बातें नहीं बतानी है, ये किसी और को भी बता देता है। सो जिस दिन आपको ये पता लग जाता है, उस दिन जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है वो 0 हो जाता है।
राइट। रिलायबिलिटी गेन करने में बहुत साल लगते हैं। ताश के पत्तों से घर बनाने वाला गेम खेला है किसी ने? कितनों ने खेला है? बहुत मुश्किल से वो खड़े होते हैं, पता है ना, और एक ऐसे किया आपने और वो सब। सो दिस इज द लाइव एग्जांपल, दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ रिलायबिलिटी। अगर आपका जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है वो ब्रेक हो गया तो 1 मिनट लगेगा, मिनट भी नहीं, सेकंड लगेगा, बट बनाने में टाइम लगता है, राइट। सिमिलरली मेरे लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है, आपके लिए भी वही एप्लीकेबल है कि अब जैसे मैम आस्क्ड मी कि हाउ डिड आई टैकल द सिचुएशन। मैंने बहुत सालों में ये चीज गेन की है कि आज जितने भी लोग आगे बैठे होते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें पता है कि ही कैन हैंडल, बट वो गेन करने में मुझे 7-8 साल लगे हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी कि तकरीबन 2000 दिन तो ऐसे ही गुजार चुका हूं मैं। 2000 दिन हम लोग जब कभी काउंट करते हैं ना, जब कोई फैक्ट्स आते हैं कि इतने पैसे उसकी शादी में खर्च हो गए, इतने में इतने अस्पताल बन जाते, इतनों के कपड़े आ जाते, इतनों के बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म आ जाती, इतने सोफे आ जाते। हम लोग फैक्ट्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो फैक्ट्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फैक्ट्स कैलकुलेट होते हैं, हम सब कैलकुलेशन जानते हैं, बट लाइफ की कैलकुलेशन टाइम के साथ सीखनी पड़ती है। लाइफ का कैलकुलेटर नहीं है कोई, है ना। अंजू मैडम बैठी है पीछे, अभी अभी आई है, थैंक यू वेरी मच, आप आई, अच्छा लगा मुझे। प्लीज, आप मेरी ऑडियंस में है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। सो द थिंग इज, रिलायबिलिटी का फैक्टर इनका इनको एग्जांपल मैंने क्यों दिया, इनकी रिलायबिलिटी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा थी। इन्होंने चिंता छोड़ दी थी कि मैं, हालांकि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही रेडी नहीं था। मैंने आपसे कहा कि इसको 4 लोगों ने रिफाइन किया है कि ये बच्चों के लेवल पर आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इन्होंने कहा कि डिटेल्स भेजने वाले थे, आप अभी तक भेजी नहीं आपने। फिर मैंने कुछ बहाना बनाया, मैंने कहा मैम अभी रिव्यू चल रहा है। सो द थिंग इज, यू नीड टू लर्न हाउ टू टैकल द सिचुएशन। ये केवल आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने कहा था कि जो सूर्य वाली जब हमने बात की, द कमेंटेटर जो इंग्लिश कमेंट्री कर रहा था, he clearly mentioned that his presence of mind is amazing and he did an amazing job. कारण क्या है कि उस टाइम पर अगर उसका वो नहीं होता प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोई कप्तान, कोई कीपर, कोई कोच वो कैच ले पाता नहीं ना, कैच उसी को लेना था। सो उसका हेल्प कौन कर रहा था? उसका एक्सपीरियंस और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। सो ये सारी चीजें रिलायबिलिटी के फैक्टर में आती हैं। बीइंग अ रिलायबल कम्युनिकेटर मींस दैट यू एंड people around you can trust you to start a conversation when needed and respond effectively to others. So effectively कब कर पाएंगे? जब आप confident होंगे। effectively कब कर पाएंगे? जब आपके पास knowledge होगी। effective कब कर पाएंगे? जब आपके पास practice होगी। और effective कब कर पाएंगे? जब आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही तरीके से कह रहा हूँ। The way you are transferring the knowledge or the information or the homework to your fellow students. ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। A skilled communicator address conflicts in a timely manner and starts a conversation when needed. Being a proactive communicator can help prevent misunderstandings and establish a responsible reputation. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? रिस्पॉन्सिबल रेपुटेशन। यहाँ पर मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये अरेंज हुआ। हम लोग कल बात कर रहे थे, मैडम ने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम मुझे पता है तेरे कोशिश पर ही डिपेंड है, कोशिश से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, पर चीज वही कि अगर बच्चे नहीं आए तो द थिंग इज, आपका जो ट्रस्ट है, जो आपने गेन किया है, उसे आपने फुलफिल किया। नाउ योर टीचर्स विल बी मोर कॉन्फिडेंट फॉर द नेक्स्ट टाइम कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होना है, कोई ऐसी वर्कशॉप होनी है, सो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि नहीं बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और इस चीज से बच्चों को हेल्प होगी। सो दे विल कम एंड दे विल जॉइन द वर्कशॉप, राइट। सो ये सारी चीजें क्या है? प्रोएक्टिवनेस में आती हैं जो आपको गेन करनी है। क्लास में प्रोएक्टिव होना चाहिए, हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। हाइपर एक्टिव कौन है? कोई है हाइपर एक्टिव? सारे के सारे प्रोएक्टिव हैं। कोई एक्टिव है? कोई भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो सभी होंगे ना। कोई नॉन एक्टिव है? नॉन एक्टिव का कोई काम ही नहीं है क्लास में, है ना। सो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। बी अ प्रोएक्टिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये आपका पूरा चैनल है। आप किसी से बात कर रहे हैं, यू आर द सेंडर। आपका मैसेज आपने जो कन्वे किया अपनी बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, पिक्चर से, डायग्राम से, आप जो नोटबुक लिखते हैं, अपनी आंसर शीट लिखते हैं, वो क्या है? मैसेज ही तो है जिसको इवेल्युएट करेगा टीचर। सो दैट इज द मैसेज। चैनल क्या है? क्या यूज कर रहे हैं? एग्जाम हो रहा है, एग्जाम इज अ चैनल।
हम और आप क्या बात कर रहे हैं? आमने सामने मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट्स चैनल। रिसीवर कौन है? हम दोनों रिसीवर हैं। रिसीवर कौन है? हम दोनों रिसीवर हैं। मेरा जो कंटेंट है वो आप रिसीव कर रहे हैं और आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कब होता है? व्हेन वी हैव अ फीडबैक। मेरे जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे खामो खा आया था यार, टाइम खराब करके चला गया। कोई बात नहीं, कह सकते हैं, फील फ्री टू डिस्कस। क्लास में जरूर करना चाहिए ये काम। लेकिन कुछ कहेंगे कि नहीं, कुछ तो काम की बातें बताई, कुछ कहेंगे कि ठीक है होता रहता, सब पता है, कुछ नया नहीं। हर तरीके की प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। फिल्में बहुत सारी बनती हैं बट सब तो नहीं चलती हैं। कुछ हाईएस्ट ग्रॉसर होती हैं, कुछ थोड़ा कम ग्रॉसर होती हैं। कोई किसी में सिनेमा हॉल में एसी बंद कर देते हैं लोग। अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ है साउथ में? एक फिल्म आई जो अच्छी नहीं थी तो उसको देखने लोग कम पहुंचे, तो सिनेमा हॉल ने क्या करा, कम लोगों को देख के एसी बंद कर दिया। तो जो बैठे थे उन्होंने कहा हमने तो पैसे दिए हैं, तो वो लड़ने लग गए। ये सब क्या है? आपके एक्शंस, द एक्शन ऑफ द सिनेमा हॉल विल स्पीक कि भाई हमें जरूरत नहीं है आपकी। उनके एक्शन ने क्या बताया? कम्युनिकेट किया गलत मैसेज। ये सब भी तो कम्युनिकेशन नहीं आएगा ना। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी नीड अ सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड अ फीडबैक। फीडबैक जो है वो डिपेंड करेगा चैनल पर। चिट्ठियां लिखता है आप में से कोई? पोस्ट कार्ड यूज करता है? कोई नहीं करता ना। सब मोबाइल पे वो व्हाट्सएप करते होंगे, राइट? इमोजी भेजा, इमोजी आ गया। सो चैनल क्या है? व्हाट्सएप है। इमोजी भेजा, इमोजी आ गया। लेकिन अगर इमोजी नहीं आया तो आप क्या सोचेंगे? यार अवॉइड कर रहा है क्या ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब बात करनी चाहिए इससे। तो ये क्या है? ये फीडबैक है। लेकिन अगर दूसरी इमोजी आ गई तो भी फीडबैक है, यानी कि वो एक्टिव है और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली आपकी पीटीएम होती है, मम्मी पापा को कौन लेकर आता है पीटीएम? बहुत कम लाते हैं। क्या बात है? कैसा फीडबैक मिलता है मम्मी पापा को? अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं, एवरेज, अच्छा। तो आपका जो पीटीएम है, पीटीएम डे इज अ चैनल, और फीडबैक किसे मिल रहा है? आपके माता पिता को, क्योंकि आपके टीचर और आपका स्कूल बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड योर पेरेंट्स। सिमिलरली योर पेरेंट्स आर इक्वली रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द स्कूल एंड द टीचर। अगर आप घर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो दे विल रिपोर्ट टू योर टीचर कि घर में तो पढ़ते ही नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने पीटीएम में आकर ये कहा टीचर से, बच्चे बनाएंगे टीचर नहीं, ये तो पढ़ते ही नहीं है, घर में तो पढ़ते ही देखा नहीं मैंने। ईमानदारी से आप उठाना, तुम सब भी मेरी तरह हो। सो देखो ये सब होता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप इसको एंजॉय करिए, इसको यादें बनाइए अपनी, आपके बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें। आपको बूस्ट करेगा कि जमाने में कि हाँ हम ऐसे अच्छे स्कूल में थे, हमारे अच्छे स्कूल बने, अब आपका स्कूल बदलेगा, आप फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे, बट द चार्म ऑफ दिस क्लास विल रिमेन सेम। हम लोगों का शायद दोस्ती को 20-22 साल हो चुके हैं। हम लोगों को सब एक दूसरे का पता है कि कौन कितने नंबर लाता था, कौन नंबर नहीं ला पाता था, कौन क्लास में सोता था। उसका एक अलग मजा है, ठीक है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए, एक और एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद विल वाइंड अप इन 10 मिनट्स, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द डायस। अब ऐसा करते हैं, आप इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए किनारे पे। आप इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए, हाँ ऐसे। आप वहाँ बैग वहाँ पंखे के पास चले जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। वहाँ इधर खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। टाइमर भैया रेडी? ये सीए जो है ना टाइम बहुत देखता है। 31 जुलाई है आज, अब सबको फाइल करना है टीडीएस, कटेगा वरना मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब क्लास 5th 6th 7th में रहे होंगे, 8th में रहे होंगे, तो आपको वर्ब्स पढ़ाए गए होंगे इंग्लिश के। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ाए गए। गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ाए गए, क्योंकि उनका वो ग्रेटर सुपरलेटिव डिग्री और बेस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंचना रहता था, है ना। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट गुड, ठीक है। आप सब स्कूल में आए हैं, आप सब गुड हैं, आपको क्या बनना है? ये पॉइंट है बेस्ट, ठीक है। सो गुड से जो बेस्ट है, इसके बीच में क्या आता है? बेटर। किसने बोला बेटर? क्लैप फॉर योरसेल्फ, जोरदार तालियां आप सबके लिए। कारण क्या है? एक बहुत अच्छी शिक्षाविद है, बहुत ही रिनाउंड, आई थिंक शी इज द वाइस चांसलर ऑफ कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, रह चुकी हैं पहले, और बहुत मतलब रिनाउंड लेडी हैं एजुकेशन की फील्ड में। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था जो मुझे बहुत मतलब मेरे दिल के करीब है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग में ये कहा कि आप सब अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपको बेस्ट बनना है, लेकिन इसकी जो यात्रा है वो बड़ी लंबी है। अब करना क्या है? ये ट्रेन बनाइए, यहाँ पे एक आइए, ट्रेन बनाइए, थोड़ा और आगे हो जाए। ट्रेन की सवारी करनी है, ठीक है भैया। टाइमर रेडी? अब आपको जो नॉर्मल पेस है जिसमें हम स्कूल आते हैं, उसमें आप ऐसे, मैं पहले बता रहा हूँ चलना कैसे, ऐसे आना है और फिर ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जिगजैग। सांप सीढ़ी के लिए बीच में सांप काट सकता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वहां पहुंचना है। टाइम रेडी?
3, 2, 1 गो। धीरे धीरे, आराम आराम से। आप वहीं रहिए जहां गुड आप है और धीरे धीरे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग बेटर योरसेल्फ। आप गुड तो हैं, बट बेस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। समझ आया? ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ। ये जो प्रोसेस है, इसमें आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइंड करना है। चलिए, क्या नाम है आपका? विनप्रीत। आपका? कलश। आपका? वंश। सुभांश। आप ही हैं? हर्ष। चलिए, बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे कि हर्ष हमारी ट्रेन में थे। आप बेस्ट बैठिए। गुड, आप भी बैठिए। थैंक यू वेरी मच। सो द थिंग इज, सी, मैंने कोई भी बात आपको जो आज बताई होगी, इसमें कोई ऐसी बात लगी आपको जो नई हो या आपको ना पता हो? अगर आपको पता थी तो रेज योर हैंड। जो मैंने बताया वो आपको पता ही होगा। नॉर्मली वी जनरली टॉक, सो रेज योर हैंड इफ यू नो द टॉक। आपको पता था सब, और ऑलमोस्ट पता ही होगा। मैं जानना भी यही चाहता हूं कि पता ही होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर गुड। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुड ना हो, राइट? लेकिन जिस तरीके से आपको पता चला, ये तरीका पता था, ये नया है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, जीतने वाले हर काम अलग तरीके से। ये तरीका क्या है? अलग तरीका है। ये मैंने इजाद किया खुद, क्योंकि मैं बहुत सालों से ऐसे ही कर रहा हूँ, सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में बेस्ट बन पाऊँ, ठीक है? और मुझे तो ये भी बताने वाला नहीं था कोई कि मैं गुड हूँ, ठीक है ना? बट आज का जो एक गोल्डन टाइम है एजुकेशन फील्ड का, उसमें ये बताया जाता है बच्चे को कि आप गुड हो। पहले ही बताया जाता है कुछ नहीं आता, ऐसे क्यों आ गया, स्कूल ले जाओ उसको। आज ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्टूडेंट, यू हैव टू स्पेंड टाइम टू नर्चर हिम और हर, ठीक है ना? टीचर्स के ऊपर प्रेशर है इस चीज का। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हर चीज टाइम लेती है। चलिए, ओके, सो these are the practical tips for students participating in group discussions, public speaking, writing and reading। बस, ओके, राइटिंग एंड रीडिंग रेगुलरली, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये सब आपको अपने लाइफ में आज के बाद से, इंक्लूडिंग आज, करना ही है। 10 मिनट डेली लिखना है आपको, स्टार्टिंग विद 5 मिनट्स, इट्स अप टू यू, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। उसके बाद वो 5 के 10 करने ही होंगे आप। इफ यू विश टू स्टार्ट विद 10 मिनट्स टुडे, दैट वुड बी ग्रेट, बट 1 महीने के बाद उस 10 को 15 मिनट करना है आपको, और फिर 20 मिनट पर आपको डेली प्रैक्टिस रखनी है अपनी। 3 महीने के बाद ये पूरा हिस्से में जो स्ट्रेन आता है वो नहीं आएगा, ठीक है? सो दीज आर द कॉमन टिप्स फॉर यू व्हिच आई थॉट कि यहाँ होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है? अब दिस इज द टाइम फॉर द ओपन डिस्कशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, और कोई विचार कि बेकार थी वर्कशॉप, आप क्यों आए, आपने टाइम खराब कर दिया, छुट्टी खराब कर दी, अच्छा भला सोते 11 बजे तक, हम उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर सकते थे। इस तरीके का कोई भी विचार हो, मैं उनका स्वागत करूंगा। नाउ ऑल योर्स, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस वर्कशॉप? इस वर्कशॉप को आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने समझा। फर्दर व्हाट? हाउ विल यू यूज दिस कम्युनिकेशन स्किल, communication workshop as an advantage for you in your education, in your academics, in your class, in your high school exams? कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे, कैसे लेंगे? और देखो, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। हमारे पास, हमारे भी स्कूल में बहुत आते थे पढ़ाने टीचर्स, गेस्ट लेक्चरर भी होते थे। तो एक बहुत अच्छे अमर उजाला के, वो क्या नाम था, अमर उजाला के एडिटर थे ना, वो क्या नाम था उनका, उस टाइम पे नाम भी भूल गया हूँ मैं, काफी याद हो गया, याद नहीं है। अमर उजाला के चीफ एडिटर थे उस टाइम पर, शायद 2006 की बात है ये। उनकी ऐसी 2 दिन की वर्कशॉप हमने की, तो उसका जो थैंक यू नोट था वो बोलने के लिए मुझे बुलाया गया, जबकि मुझे नहीं पता था कि मुझे बुलाया जाएगा। तो मैंने पूछा कि राहुल आओ, मैंने कहा हाँ कोई और है क्या? तो पता चला कि मैं ही एक अकेला राहुल हूँ क्लास, तो मुझे ही कहना था। तो मुझे ऐसे एक रैंडम थॉट आया कि सर देखिए, यहाँ पर आपने जो भी बताया है, पढ़ाया है, हम सबको समझ में तो आया, हमने पढ़ा, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे एक दिन में, इसमें टाइम लगेगा, और टाइम विल डिसाइड कि हम इसमें से कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीखे हैं। तो जब आप दोबारा आएंगे तब आपके पूछ कर देखिएगा कि किसने क्या सीखा, किसने क्या किया। जिसने जो किया यानी वो सीख गया, जो रह गया यानी वो छूट गया। सो दैट विल डिसाइड टाइम, कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? सो दिस इज माई थैंक यू नोट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर this communication skills workshop will lead you to the success, but success will define your nature, right? Success you may define for yourself what is success. Success, वो सबने देखी होगी 3 Idiots, वो क्या कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो। ये बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था, फिल्म आई बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उतना जितना आना चाहिए। रीजन ये है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जॉय ऑफ लाइफ कहाँ है, इसी में लगे हुए हैं, जबकि जॉय आसपास ही है। वेयर इज जॉय? वेयर इज जॉय? यस, जॉय कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि फ्लाइंग थिएटर से जॉय नहीं आए।
ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Rahul sir, for the wonderful session. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Action to speak more than words. See the action. In front of us, they have given such a big round of applause to thank you, and we can expect there is some improvement in the communication skill. We can be polite, we can have empathy, we can see your enhanced confidence. Am I right? कुछ changes देखने को मिलेंगे. So I have to give feedback. मैं रिपोर्ट करूँगी राहुल सर को कि आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, स्पेशली आफ्टर दिस वर्कशॉप। और आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं, ये हमें पता है। अच्छा, कितनों को आकर के अच्छा लगा अटेंड करके? कितने बच्चों को अटेंड करके सचमुच में अच्छा, दिल से बोलिएगा, अपने फ्रेंड को देख करके हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, बी ऑनेस्ट, ओके, बिल्कुल ऑनेस्टली अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टीचर्स कैन आल्सो रेज हैंड, ठीक है? तो सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी, बीइंग अ टीचर आई एक्सेप्ट कि हमें भी जरूरत है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। There is always a scope for improvement. हमारे अंदर भी ये बहुत ही जरूरत है हमें इस चीज की कि हम भी इम्प्रूव करें। So thank you so much, Rahul sir. We will also work on this, and I'm expecting better, no, best communication skill. Okay, going from good till better. We are expecting best communication skill, and next time when Rahul sir comes to our school, the school will show this. Okay, this will be evident in your behavior. और ये जो कर्तव्य ध्वनि आपने यहाँ पर प्रेजेंट की है, ये आप ही के, क्योंकि आप वाकई में बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, वरना स्कूलों में इतने डिसिप्लिन बच्चे नहीं मिलते। और पौने 2 घंटे, लगभग 2 घंटे से आप बैठे हुए, मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सीटेड फॉर 2 आवर्स। 30 मिनट का लेक्चर तो हमसे होता नहीं है क्लास का, अब 2 घंटे से मैं यहाँ डस रहा हूँ। सो द थिंग इज, आपको अप्रोच आपकी फ्रेंडली रखनी होगी, राइट? जितना आप अपने आप से प्रेम करेंगे, जितना आप अपने आप के लिए फ्रेंडली हो जाएंगे, उतना आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेट यू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। पहले तय करिए खुद, अच्छा है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूंगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत पता होना चाहिए। हम लोगों के टाइम पे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता नहीं था, बट कॉन्सिक्वेंसेस आज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई मस्ट से थैंक यू टू एवरीवन। लक्ष्य जी आज यहाँ नहीं है किन्हीं कारणों से, ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने सिर्फ सुनते ही कहा कि नहीं, ये आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स एग्जीक्यूट। इसका ना कुछ उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे, ना प्रोज एंड कॉन सोचे, बट आई थिंक हम लोग सही डायरेक्शन में थे, और जो आज आप लोगों से मिला है दैट इज फिनोमिनल। और आंटी आई, आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू, आपकी जो एमडी हैं एंड एंटायर ऑफिस स्टाफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत थैंक यू वेरी मच। सो कीप लर्निंग, बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से बेहतर कल, और कल से बेहतर, और परसों से बेहतर, और नरसों से बेहतर। ये यात्रा अनवरत जारी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।